Hello everyone and welcome back to a new vlog story time. This is about my worst client experience ever. You see I have खीरा, प्याज, these all things in place. बीटरूट भी है, इस बार मैं बीटरूट भी खाऊंगी. मैंने ये खुद को समझाया है. So this is about my worst client experience ever, and to give you a quick background, I am the founder of Empowerment, which is a personal branding agency where we help founders, coaches, CXOs to build a magnetic personal brand online, specifically on LinkedIn, to help them generate consistent leads for their business and build their visibility in their industry. This is the story about my worst client experience ever. I never thought that I would be making an entire story time on this, but then I thought कि ठीक है बना देते हैं यार. There are a lot of people like me who are hustling to become a marketer and they are learning different things, तो उनके लिए maybe helpful होगा. तो first things first, I'll share the story with you, और उसके बाद I'll also share कि exactly मैंने क्या क्या गलतियाँ करी थी जो कि आपको, if you are someone who is wanting to get into marketing, who is wanting to build their own agency or business from scratch, what are the mistakes you could avoid, things like that. So this prospect approached me. वो instantly आए थे मेरे LinkedIn profile पे. They got an idea about what I do and he booked a call with me. We discussed things over a meet जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे questions पूछे. I think I should have thought about the red flags. मुझे शुरू से ही spot करने चाहिए थे. But if you know, जो red flag clients होते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं. बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते. जो पहला मीट था ना वो लगभग 1.5 घंटे का था, जिसमें उन्होंने मुझसे बहुत हद से ज़्यादा क्वेश्चंस किए. इतने ज़्यादा क्वेश्चंस किए जिनकी कोई गिनती नहीं है. बट फाइन, आई वेंट अहेड. आई वाज लाइक ठीक है, मे बी ही इज़ हायरिंग अ मार्केटर फॉर द फर्स्ट टाइम. हालांकि उन्होंने मेंशन भी करा था कि वी हैड हायर्ड मार्केटिंग एजेंसीज बिफोर दिस, और फिर हमको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले थे, एंड दे वर लाइक starting to do back pitching. Since I have been in the industry for some time, I know कि sometimes things just don't work. Even after putting 110% of efforts, things just don't work out. So whenever a client or a prospect speaks badly about their previous experience with a different service provider, you need to run away from them, because you never know कि in the near future they will be back pitching about you as well, no matter how good work you deliver. Right? So I ignored that as well. इसके बाद we proceed with the Q&A thing. पहला तो उन्होंने ये Q&A बहुत ज़्यादा questions किए. मैंने हर एक का बहुत अच्छे से आंसर किया, बहुत अच्छे से उनको समझाया कि this is exactly what we do, this is how exactly we would work, and blah blah blah. इसके बाद बात खत्म हो गई. फिर he was like कि ठीक है, let me discuss with my team and I will get back to you. उसके बाद 1 घंटे बाद he gets another person or one of his team members on a call with me, और फिर वो वापस से वो वाले क्वेश्चंस पूछते हैं कि ही ऑल्सो वॉन्ट्स अ क्लैरिटी बेस्ड ऑन आप कैसे काम करने वाले हो वगैरह वगैरह. लाइक ही वॉज at this point definitely interested in what I had to offer, and the pricing and all were pretty decent for him. That guy was into marketing, so that guy asked me a lot of questions. I made sure to answer almost all of them. They were cross questioning like for the silliest of things. मतलब इतने ज़्यादा silly questions तो ओ भाई मैंने तो कभी नहीं देखे थे. तो मुझे ऐसा लगा कि I was like कि कुछ तो गड़बड़ है यार. मतलब इतना क्या कैसे डाउट हो सकता है इनको. मतलब ये पहली बार थोड़ी ना किसी मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर रहे हैं, राइट. तो उनका फिर मैंने इंस्टाग्राम भी चेक किया. दे हैड गॉट फॉलोअर्स एंड दे वांटेड कि मैं उनका इंस्टाग्राम भी हैंडल कर दूँ, साथ में और लिंक्डइन भी हैंडल कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ. तो आई वाज लाइक कि मैंने क्लैरिफाई किया अपना टर्म्स की दीज आर द थिंग्स दैट आई डू एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई विल बी वर्किंग टुवर्ड्स वंस यू हायर मी. ठीक है, ताकि वी आर वेरी क्लियर ऑन द टर्म्स. तो इस वजह से मैंने फिर हर चीज़ की उनको क्लैरिटी दी. और हाँ, इसके बाद उस दिन का कॉल ख़त्म हो जाता है. इसके बाद आफ्टर 2 or 3 days आई गेट बैक टू देम अगेन. मतलब मेरा तो काम ही है एज अ फाउंडर की टू फॉलो अप आफ्टर अ कॉल.
कि what decision they have made और what things are they up to, things like that. तो इस वजह से मैंने उनको follow up किया कि what are your thoughts on this. मतलब वो फिर से cross questions करने लगे वही सेम चीज़ों का जिनका मैंने already answer कर रखा है. Then he was questioning कितने posts होंगे per week, आप क्या क्या exactly कर रहे होंगे, ये चीज़ होगी या नहीं, ये चीज़ होगी या नहीं, वो होगा या नहीं. Obviously ये कितने questions हैं, पर ठीक है. I was very interested in what they had to offer and उनकी इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें मैंने पास्ट में भी काम कर रखा था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर रखे थे, विच वॉज वाई मैंने सोचा कि नहीं ठीक है आई विल ट्राई टू मैनेज एंड आई विल बी, क्योंकि मुझे ये तो कॉन्फिडेंस था अपने में कि मैं रिजल्ट तो डिलीवर कर दूंगी क्योंकि मेरे पास मेरी टीम है और हमने पास्ट में भी ऐसे सिमिलर क्लाइंट्स को सर्व किया है, राइट. तो इस वजह से आई चोज टू गो अहेड. तो फिर मैंने उनको आंसर किया इस तरीके से. लगभग एक हफ्ते तक उन्होंने 4-5 बार, जितने बार मैंने फॉलोअप किया उतने बार वो कुछ नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चंस पूछते रहते मुझसे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये चीज़ होगी या नहीं, ये ऐसा होगा या नहीं, वो वैसा होगा या नहीं. इनफैक्ट दे ऑल्सो ब्रॉट माई कंपेटिटर्स, मतलब मेरे कंपेटिटर्स के कुछ उन्होंने कोटेशंस मांगे होंगे और वो सब लाके वो मेरे सामने रख देते एंड दे वर लाइक कि दे आर ऑफरिंग इट फॉर लेस दैन यू. ही वाज लाइक कि यू आर ओवर चार्जिंग अस, फलाना टिकाना. आई वाज लाइक कि ठीक है, just give me one answer कि if I was charging you the same as them or less than them, would you choose me or them? So that gave him an answer क्योंकि he was also into sales at some point of time in his career, so he was very clear about that कि मेरे को तो आता है ना, मतलब मुझे ये चीज़ आती है कि how to convince and how to make sure that I am not falling behind with the features of what I have to offer. I am very clear, I am very confident with my offerings. After a chase of the next 10 days जिसमें मैं हर दिन बस उनका दिन में 2 घंटे, तो मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ उनके Q&A आंसर कर रही थी, बट आई वाज लाइक नहीं ठीक है, बिल्कुल शुरुआत का टाइम है, शायद उनके पास बहुत सारे डाउट्स होंगे, लेट मी आंसर देम, नॉट अ प्रॉब्लम. It was a problem. It definitely was a problem. I had to step back at that point, but I did not. And you guys need to note these red flags. And after that, ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें हुई, उन्होंने थोड़ा सा negotiate भी किया. Guys, you need to go with the intuition, right? मेरे intuition का अब तक ये तो पता चल गया था कि whatever is going to happen, this person will make me work a lot. ये efforts तो बहुत ज़्यादा कराएंगे, जितना हमको आता है या जितना हम करेंगे उससे भी ज़्यादा करवाएंगे, है ना. इनफैक्ट उन्होंने ये भी चीज़ भी क्लियर कर दी थी कि नहीं इंस्टेड ऑफ 4 weeks फॉर द फर्स्ट मंथ आई वांट कि आप 1 week का एक्स्ट्रा आप सर्विस प्रोवाइड करो एंड दिस एंड दैट. एंड क्योंकि आई वांटेड टू रिटेन दैट क्लाइंट फॉर द लॉन्गर टाइम, आई थॉट कि डेफिनेटली दिस सीम्स टू बी अ गुड वन एंड आई कुड मेक इट वर्क आउट. नो, I should not have thought about that. I should not have tried to make it work out. Anyways, so this is how it started and I eventually got them on board. ठीक है. And the moment I got them on board, oh my god, it was a total disaster. मतलब disaster and as in not from my end, it was from their end. मतलब they were not ready to trust us at any point of time. मतलब in the first week ही मुझे ऐसा लग गया था कि I should just tell them कि मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, you guys can leave. But ठीक है, क्योंकि हमने agreement sign करा था कि we'll be working on a particular project and वगैरह वगैरह, तो I thought कि ठीक है, कोई बात नहीं, let's give it a chance, not a problem. But things did not fall in my favor. Why? जैसे ही पहला हफ्ता शुरू होता है, yes, these are beat roots. Yes, जैसे ही पहला हफ्ता शुरू होता है, they start questioning everything from every step. जबकि मैंने ये सारी चीज़ें deliverables में बहुत अच्छे से क्लियर कर रखी थी कि these are the things we'll be working towards, these are the results that we will be working towards, और ये सारी चीज़ें होंगी. But नहीं, he started questioning everything. तो in fact I got on a call with him for the next 1 or 1.5 hours. उसमें मैंने सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी कि ये चीज़ें होंगी. उनके तो क्वेश्चंस ही ख़त्म नहीं हो रहे और मेरे तो आंसर्स ही ख़त्म नहीं हो रहे. दिस वॉज लाइक दैट, और ये साइकिल चलता रहा. दिस वॉज गोइंग ऑन इन लूप फॉर द नेक्स्ट 1.5 months. Yes, 1.5 months. I'll tell you how he made it happen for the next 1.5 months. एक हफ्ते प्रोजेक्ट पे काम वगैरह करने के बाद I make sure to build an entire dashboard, है ना. मैंने सारे deliverables, सारे check points वगैरह सब कुछ clarify किया. I was in fact making sure, हमने posting वगैरह चालू करी. From the first post itself, content काफ़ी अच्छा जाने लगा. उनके content की reach कम से कम 1000, 2000, 3000 impressions तो जाने लगी. And he was quite satisfied with the reach. He knew कि I know my craft very well. अगर मैंने कोई चीज़ promise करी है तो definitely I will be delivering that.
बट इवेंचुअली क्या होता है, फर्स्ट कंटेंट में थोड़ा सा स्पाइक आया, उसके बाद हल्का सा नीचे गया वो, राइट, एंड दैट वाज meant to happen. I had never promised them कि I'll bring you viral contents. तो मैंने ये सारी चीज़ें उनको क्लैरिफाई कर रखी थी कि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स जाएंगे. I want you to trust me through the process because our end goal is to help you generate leads and to gain consistent visibility, right? हमने जीरो से स्टार्ट किया आपकी प्रोफाइल को ग्रो करना. आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है. हम स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं. कोई चीज़ को स्क्रैच से बिल्ड करने के लिए इट टेक्स मोमेंटम, इट टेक्स टाइम, कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स, एंड वी आर डूइंग इट ऑल, राइट? बट ही स्टार्टेड माइक्रो मैनेजिंग की स्क्रीन शेयर करके दिखाओ मुझे, let's hop on a call at random times in the day. In fact, he would keep messaging me till मतलब रात के 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे तक I had responded to each and every question of his, जितने भी डिटेल्स वगैरह मांग रहे थे, and they were like कि नहीं हम तो मांगेंगे नहीं अगर डिटेल्स, तो ये लोग तो देंगे ही नहीं. And that was the mistake that I did. I needed to build my boundaries very strong. अगर if any client wants you to respond to their text at night 1 a.m. then definitely they are not the right ones for you, and you better understand that and leave as soon as possible. I did not. That guy, that client was not even ready to share his learnings, like share his experiences. Like he was not willing to do anything it took for the project to happen. Like it is a मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने बहुत क्लियरली ये चीज़ क्लैरिफाई करी थी कि आप कम से कम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना फॉर अस टू डू द स्टोरी टेलिंग थिंग राइट इन द कंटेंट, टू मेक श्योर कि आपका ब्रांड परसेप्शन काफ़ी अच्छा हो एंड यू नो यू आर परसीव्ड फ्रॉम द राइट काइंड ऑफ पीपल. बट नो, दैट person did listen to me. He did not share the experiences. He was like, you are a pro at this, you should be able to manage it, you should be knowing exactly what makes a content go viral and you should be doing it yourself. I was like, bro, if you have just hired me and you're ghosting me, it is not going to work that way, right? And even when I had very clearly told you that this is the thing that we'll be working towards, I will be needing your inputs in terms of the stories and terms of certain things. And it's not even the case कि the founder was very much busy और इसकी वजह से वो शेयर नहीं कर पाएगा. No, it was just that guy was taking everything to his ego. मतलब मैं जो Zoom calls पे भी जा रही थी, मुझे ये चीज़ तो समझ आ रही थी कि that guy was someone who hated his competitors. उसको बहुत मज़ा आता था लोगों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने में, अपने बारे में बड़ाइयाँ सुनने में वगैरह वगैरह. तो मुझे इतना तो समझ आ गया था कि थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा बॉस. मतलब people who are the narcissist or with an ego attitude, it becomes very tough to handle things with them and carry forward business with them. But still, I tried my best. मैंने सारी चीज़ें है ना, I was delivering everything, and what I understood in the process was कि I was burning out a lot. And in fact मेरी team members भी, they were burning out a lot. They were not able to understand कि exactly what is going on, किस वजह से चीज़ें ऐसे हो रही हैं वगैरह वगैरह. पर गड़बड़ तो जा रही थी, इतना तो समझ आ चुका था तब तक. तो what I made sure next was कि I wanted to speak out to them. मतलब ये 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जब कंसिस्टेंटली ऐसा होने लगा कि रात को 1-1 बजे दैट पर्सन इज सेंडिंग मी टेक्स्ट कि सेंड मी द अपडेट ऑफ टुडे एंड दिस एंड दैट एंड ये सारी चीज़ें एकदम माइक्रो मैनेजिंग. मतलब details which were not even needed, were not even relevant. That guy was focusing on those things and bringing out कि नहीं मेरी तो इतनी पहचान है, मेरी तो इतनी चौड़ है इंडस्ट्री में, etc. I was like, तो एक बार यूं ही हुआ ऐसा कि he was texting me रात के 1 बजे 1:30 बजे लगभग कि कितने लीड्स आए अब तक, give me a number. I was giving him कि ये screenshots हैं this and that. He was like नहीं तुम्हारा काम सही नहीं है, ऐसा वैसा, दूसरे मार्केटिंग एजेंसीज तो अलग तरीके से काम करते हैं, they use tools ऐसा वैसा. I was like, bro, what is this time to discuss this thing? मतलब you could have given me a call in the daytime and we would have discussed on it. Doesn't make sense, right? आपको सिर्फ मतलब सारे दिन में यू आर टेक्सटिंग मी, मतलब एकदम मैं एग्जॉस्ट हो रही थी कि थ्रू आउट द डे दैट गाय इज जस्ट पिसिंग मी ऑफ. एंड रात के 1-1:30 बजे भी उसको चैन नहीं है, ही वांट्स एन अपडेट ऑन ऑल ऑफ दिस. आई वाज लाइक, ब्रो, ये इतनी बड़ी कंपनी का फाउंडर है, ही वुड हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स टू डू, बट ही लेफ्ट ऑल ऑफ दैट एंड ही इज माइक्रो मैनेजिंग मी. एंड एट दिस पॉइंट मुझे इतना तो समझ आ गया था कि या तो मैं फुल टाइम इसके यहाँ काम कर सकती हूँ बिल्कुल माइक्रो मैनेज होकर 24 घंटे 24/7, या फिर आई कैन वर्क एज एन एक्सपर्ट. आई नो माई वर्क वेरी वेल, आई विल बी एबल टू deliver that very well, which I did towards the end of the month. Yes, he had nothing to question my abilities, but still he made that happen. And let me get to this point कि जब मेरा दिमाग खराब हुआ रात के 1:30 बजे and I responded back कि I am done. इतना माइक्रो मैनेजमेंट मैं नहीं सह सकती, ना ही मेरे टीम मेंबर्स सहेंगे, और ये चीज़
बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है. आई मेंशन हिम एवरीथिंग कि दिस इज़ नॉट द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. यू मेक श्योर कि आप एक स्केड्यूल या तो 9 to 5 के ड्यूरेशन के बीच आप मुझसे क्वेश्चंस करो, बट यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स नाउ एंड दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट. एंड पहले तो उसने बोला कि सॉरी. उसके बाद 1 घंटे बाद वो वापस से टेक्स्ट करता है रात को 3 बजे शायद. नो, आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट दिस, यू आर नॉट वर्किंग द राइट वे, यू डोंट नो योर वर्क, ऐसा वैसा. यू आर नॉट ट्रस्टिंग माई वर्क, व्हाई डिड यू इवन हायर मी इन द फर्स्ट प्लेस? लाइक सीरियसली, इट वॉज लाइक हर मोमेंट में मुझे ऐसा लग रहा था कि दैट पर्सन वॉज जस्ट टेस्टिंग माई एबिलिटीज. ही जस्ट हैड जीरो फेथ इन मी. ही वॉन्टेड टू मेक श्योर कि वो बस अपना ईगो बूस्ट करना चाह रहा था कि नहीं, आई हैव हायर्ड यू नाउ, मैंने तो खरीद लिया है तुमको, नाउ यू विल डू एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, आई विल माइक्रो मैनेज यू इन व्हाटएवर वे इज पॉसिबल एंड यू विल बी द वन हु विल हैव टू बेयर द पेन ऑफ इट. आई वाज लाइक डन, दिस इज नॉट वर्किंग आउट. मैंने रात को ही बता दिया कि नो लेट अस हैव अ डिस्कशन टुमारो और दिस इज नॉट वर्किंग आउट. तो उस टाइम पे तो उसने सॉरी बोल दिया, बट उसके बाद वापस से चढ़ बैठा. नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, ये वो ऐसा वैसा, यू डोंट हैव द राइट स्किल सेट्स टू वर्क ऑन दिस, यू हैव स्कैम्ड मी, ये वो. ब्रो, व्हाट the hell is that language? Like, is that even a professional way to speak to us? And then he was like, you were also not professional while speaking to us. Which kind of professionalism is messaging रात के 1:30 बजे to your team member and asking them about the updates of work? Like, are you mad? Are you crazy? Don't you even have the time to sleep? And even after being an Indian client, that was the moment I was done. That guy was not even ready to talk to me. He sent his team member कि आप इनसे भिड़ लो कि ऐसा ऐसा बोल देंगी, ये तो उल्टा पुल्टा एंड दिस इज नॉट वर्किंग आउट. मैंने कहा कि नहीं, आई वाज गिविंग हिम द एग्जैक्ट डिटेल्स. तो उसकी टीम मेंबर ने भी आके बताया मेरे को कि नहीं यू शुड हैव गिवन हिम द अपडेट्स वगैरह वगैरह. आई वाज लाइक, आई हैड ऑलरेडी गिवन हिम द अपडेट्स. मैंने उनको सारी शीट्स शेयर कर रखी हैं, राइट? उसमें सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी. ही जस्ट नीड्स टू हैव अ लुक एट इट ऑन द राइट टाइम्स. इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम, राइट? एंड वी वर वेरी क्लियर विथ व्हाट वी वर डिलीवरिंग. हमने कोई भी ब्रीच नहीं किया था इन टर्म्स ऑफ जो भी हमने प्रॉमिस किया था, राइट? बट द ऑडासिटी. उसके बाद दैट गाय अगेन कॉल्स मी, हे आयुषी, डिड यू हैव अ टॉक विद this guy? I was like yes, and he was like कि नहीं the way you spoke to me, I knew you were doing something wrong. ठीक है, आपकी एज बहुत कम है. भाई साहब, that guy was टॉर्चरिंग मी नाउ. ही वाज लाइक कि मुझे पता है आपकी एज बहुत कम है, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ 2-2 घंटे रोज़ कॉल्स पे बैठ रहा था ताकि मैं आपको ट्रेन कर सकूँ कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको. अच्छा, मुझे ट्रेन होने की ज़रूरत है? इस वजह से आपने हायर किया था कि मुझे? आप किसी और टीम मेंबर को हायर कर लेते, एक फुल टाइम एम्प्लॉई को हायर कर लेते ना. अगर आपको ट्रेन करना था, आपने एक एक्सपर्ट को हायर किया है, तो यू शुड हैव द गट्स टू अंडरस्टैंड. अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाके एक अच्छा सा मील ऑर्डर करते हो, आप जाके अगर शेफ़ कितना नमक डाल रहा है, कितनी सब्जी डाल रहा है, कितने स्पाइसेस डाल रहा है, ये ऑब्जर्व करने लग जाओ, डू यू थिंक इट विल इवन टेस्ट द वे यू वांट इट टू टेस्ट? आर यू सीरियस? दिस was the thing that was pissing me off. मुझे इतना तो समझ आ गया कि I am getting exhausted, this is not working out. मेरे को अपनी स्नैक्स पूरे करने हैं, बट ठीक है, ये कंप्लीट होना चाहिए. तो इस पॉइंट में मुझे समझ आ गया था कि I am getting exhausted, ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, I need to get this off. 3rd वीक तक तो मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि I was willing to do anything. I was like कि भाई मेरा सब ले लो, पर इस क्लाइंट को भगाओ यहाँ से. मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए. इनफैक्ट इसको पैसा चाहिए, इसको रिफंड दे दो यार, पता नहीं चाहिए मेरे को ऐसा क्लाइंट. मैं क्या करूँगी? मैं किसी और क्लाइंट को सर्व नहीं कर पा रही हूँ. वी आर ऑल गेटिंग बर्न आउट की वजह से हम इनको भी बेहतर सर्व नहीं कर पा रहे हैं, ये भी सेटिस्फाइड नहीं रह रहे हैं बाय द एंड ऑफ द डे. तो इट डजंट वर्क. मुझे इतना समझ आया फॉर द फर्स्ट टाइम कि माइक्रो मैनेजिंग क्लाइंट्स can scare the shit out of you. They will make you doubt your abilities. They will make you doubt on every single step that you take. It will look like walking on eggshells. आपको लगेगा कि हर वो जो चीज़ आप करते हो वो गलत ही जाती है. मैंने अब तक कितने सारे क्लाइंट्स को सर्व किया था and they were all really happy with my work, but this guy made me doubt so many things. मुझे अगले 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल उस ट्रॉमा से निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि सीरियसली मेरा काम इतना बुरा तो नहीं है, कहीं मेरी टीम अंडर परफॉर्म नहीं करे, ये तो नहीं चल रहा, वो तो नहीं चल रहा. ऑफकोर्स उसकी वजह से मैंने ऑल दीज प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करे, तो दैट्स अ गुड पॉइंट. मतलब अगर आपको माइक्रो मैनेज करने के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हो तब भी एक बार समझ आता है, बट इफ यू आर नॉट इवन गेटिंग दैट, इट्स ऑफ नो यूज, राइट? दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड. एंड
बाई द एंड डेफिनेटली आई हैड टू क्विट। लेकिन उस बंदे ने तब तक भी ड्रामे खत्म नहीं किए। दैट गाय ट्राइड टू गेट इन टू माई लैब। ही वॉज लाइक कि नहीं यू हैवंट डिलीवर्ड द सर्विस, जबकि मैंने 1 महीने की सर्विस को स्ट्रेच करके 5 वीक्स का बनाया, सारी चीज़ें डिलीवर करी। 5 वीक्स नहीं 6 वीक्स का बनाया। उसके बीच में दशहरा एंड ऑल की हॉलीडेज थी, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है आई विल मैनेज एंड वी कैन कट इट ऑफ कि पूजा के छुट्टियों को वाला अपन एक्स्ट्रा डेज पे मैनेज करके डिलीवर कर देंगे। डेढ़ महीना तक we delivered the service which was meant to be just for 4 weeks, and we did not compromise on anything. We had delivered them 80 plus leads for the month entirely, पूरे proof के साथ सारी चीज़ें। एंड स्टिल दैट गाय टॉक शिट अबाउट मी। तो उस पॉइंट के बाद जब मुझे समझ आया कि नहीं यार ये तो फालतू की बकवास कर रहा है, अब तो देयर इज़ नो पॉइंट इन हैविंग दिस गाय। तो उस पॉइंट पे हाँ मैंने बस डिस्कशन खत्म कर दी, दैट्स इट। दैट गाय मूव्ड ऑन। ही वाज लाइक कि नहीं आई एम गोइंग समवेयर एल्स, आई एम ट्रैवलिंग, तो फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ वील स्टार्ट अगेन, ऐसा सा कुछ किया। आई वाज लाइक कि ठीक है बोल तो रहा है अच्छी बात है बट आई डोंट वांट टू स्टार्ट, ठीक है देन देते हैं। 1 महीने बाद दैट गाय कम्स एंड मे बी ही वुड हैव टेकन सर्विस फ्रॉम समवन एल्स एंड ही वाज लाइक कि वो लोग तो काफ़ी अच्छे सर्विसेज दे रहे हैं, तुमने मुझे डबल चार्ज किया है वगैरह वगैरह ऐसा वैसा। आई वाज लाइक प्राइसेस सबकी अलग होती हैं राइट, एंड यू कैन नॉट जस्ट कंपेयर माई प्राइसेस विद समवन एल्सेज इन द सेम इंडस्ट्री बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव डिलीवर्ड। मतलब सबकी वर्किंग पोटेंशियल अलग होती है, डिलीवरिंग कैपेसिटी अलग होती है। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, आई जस्ट वेंट टू हिज ओन कोरा और फिर मैंने वहाँ पे रिव्यूज़ पढ़े, काफ़ी सारे नेगेटिव रिव्यूज़ तो वहीं पे पड़े हुए थे। तो मुझे समझ आ गया कि इस बंदे का काम भी इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, बट आई वाज लाइक फाइन ठीक है रहने देते हैं। फिर दैट गाइड वेंट अहेड और वो मेरे को कहता है कि अच्छा ठीक है लेट्स एंड दिस हियर एंड आई वुड लाइक टू गिव यू अ रिव्यू एंड यू कैन ऑल्सो मीनवाइल गिव मी अ रिव्यू। आई वाज लाइक ठीक है यू कैन शेयर योर रिव्यू गिविंग लिंक। तो उसने अपना तो शेयर नहीं किया, ही वाज लाइक कि नहीं यू शेयर आई विल ऑल्सो शेयर। मैंने इस पॉइंट पर काफ़ी बिजी हो चुकी थी तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि दिस गाय कुड डू समथिंग लाइक दिस। मैंने उसको रिव्यू लिंक शेयर किया, ही ड्रॉप्ड अ नेगेटिव रिव्यू ऑन माई प्रोफाइल। तब तक मेरे एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके थे, मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैंने इग्नोर कर दिया कि ठीक है एक आध नेगेटिव रिव्यूज़ चलते हैं इतना ये वो डजेंट मैटर। बट कुछ हफ्ते बाद वन ऑफ माई फ्रेंड्स रीच्ड आउट एंड शी वाज लाइक कि नहीं ये नेगेटिव रिव्यू इज इम्पैक्टिंग योर पोटेंशियल एंड ऑल, आपके अच्छे प्रॉस्पेरिटी चले जाएंगे वगैरह वगैरह। यू शुड आस्क द पर्सन कि व्हाई डिड ही ड्रॉप अ नेगेटिव रिव्यू एंड मे बी सॉर्ट इट आउट। आई वाज लाइक ठीक है। तो फिर मैं गई, मैंने उनसे बात करी कि व्हाट हैपेंड, यू गिव मी सच अ रिव्यू। देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम। फिर मैं क्या करती हूँ, मुझे समझ आया कि इसने तो नेगेटिव रिव्यू ड्रॉप किया, दैट टू फॉर नो रीजन। आई हैव प्रूफ टू बैक ऑफ विद एवरी सिंगल पॉइंट। उसने उस रिव्यू में ये तक मेंशन किया था कि आई हैव ऑल द फेक टेस्टिमोनियल्स, फेक सर्विसेज, आई डिड नॉट डिलीवर व्हाट आई हैड प्रॉमिस्ड वगैरह वगैरह। बहुत उल्टी सीधी बात करी। मुझे समझ आ गया कि नहीं दिस इज नॉट वर्किंग आउट। तो व्हाट आई वेंट अहेड टू डू वाज कि मुझे पता है कि ये इंसान तो ऐसे तो नहीं मानने वाला, इसको टेढ़ा जवाब चाहिए, ठीक है। आई वेंट टू हिज कोरा, आई ड्रॉप्ड अ नेगेटिव रिव्यू फॉर हिम एंड देन आई सेंड द स्क्रीनशॉट टू हिम ऑन ईमेल कि देखो ये मैंने आपका रिव्यू डाल दिया है, अब आप अपना देख लो। उस बंदे की तो फट के हाथ में आ गई, वो बंदा बिल्कुल खिसक गया। ही वाज लाइक कि तुमने ऐसे रिव्यू कैसे डाल दिया, मैंने तो बिल्कुल सही रिव्यू डाला था। आई वाज लाइक एक प्रूफ बता दो, आपने जो जो चीज़ें मेंशन करी उसका एक भी प्रूफ बता दो कि हियर इज द प्रूफ एंड दिस इज व्हाट आई हैव स्टेटेड। एक प्रूफ नहीं दिखा पाएगा वो इंसान। मैं चाहूँ तो अगले पल एक वीडियो दिखा दूँ, बना दूँ कि ये चीज़ें गड़बड़ बोली है इसने, नेगेटिव रिव्यू दे रखा है, मेरी क्रेडिबिलिटी इम्पैक्ट करना चाहता है, मेरा काम बंद करवाना चाहता है एंड दैट्स इट। तो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसको समझ आ गया कि अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो वापस let's back off. He was like नहीं Ayushi, I always had good terms with you, I really want you to remove that review. The point was कि मेरी LinkedIn प्रोफाइल पे उसने जो रिव्यू डाला था नेगेटिव वाला, वो सिर्फ वही डिलीट कर सकता था, nobody else could do it. वो इंसान तो करेगा नहीं, उसे तो टेढ़ी बातें समझ आती हैं। तो ठीक है, I went ahead and did the टेढ़ा thing और उसके समझ आ गया। I was like ठीक है पहले आप रिव्यू डिलीट करो फिर मैं करूँगी। तो वो भी करने को तैयार नहीं था। फिर और भी उसने बहुत सारे बुलशिट किए। उसने अपनी पुरानी कोई प्रीवियस एम्प्लॉई को ला के खड़ा किया कि यू आर ब्रीचिंग, तुम मेरे डेटा शेयर करी हो इनके साथ, ऐसा वैसा, फॉर नो रीजन विद नो प्रूफ एंड नो सॉलिड एनीथिंग। मतलब आई वाज डिस्गस्टेड कि भाई कितना मेंटल ट्रॉमा देगा ये इंसान मुझे, मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ अपने। तो बात ये होती कि एक और जो पर्सन थी, शी वॉज हर टीम मेंबर और उनको भी मैंने सर्व किया था, उनका भी पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया था इन द पास्ट। एंड दिस गाय थॉट कि मैं इस फाउंडर का डेटा उस लेडी से शेयर कर दूंगी। Why would I do that? Like for no reason. और चलो ठीक है, अगर आपके पास प्रूफ होता तो आप कहते, आपने रिव्यू में ये सारी चीज़ें भी मेंशन करी, इतनी उल्टी पुल्टी चीज़ें। I was like
आई वॉज डन। तो आई वाज लाइक मैं तो नहीं डिलीट करूंगी जब तक मैंने एक नहीं 3 रिव्यूज ड्रॉप किए उसके 3 जगहों पे, ठीक है, नॉट जस्ट ऑन कोरा, 2 और, एक तो उनका वेबसाइट था, एक तो गूगल रिव्यूज था, यहीं पे मैंने ड्रॉप किए। एंड आई वाज लाइक ठीक है, आपने मेरा एक नेगेटिव रिव्यू डाला, मैंने 3 डाल दिए, गुड, वर्क्स फाइन, ठीक है। बट ही वॉज लाइक नहीं नहीं सॉरी ऐसा वैसा, तो फिर उसने डिलीट किया अपना वाला। ठीक है, ही वॉज लाइक नहीं नहीं आई ऑलवेज हैड गुड टर्म्स विद यू। आई वाज लाइक ठीक है भाई, अपना ज्ञान अपने पास रखो, समझ आता है मुझे, आई एम अ जेन ज़ी, आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड डोंट मिस विथ मी एवर अगेन, राइट। बस वो दिन था और आज का दिन है। वी हैड नेवर कॉन्टैक्टेड, आई हैड ब्लॉक्ड दैट पर्सन फ्रॉम एवरीवेयर। So disgusting, bhai. Negative clients can eat your brain like anything. Like you don't even know that eating your brain exists, but the wrong kind of clients will make you do that. And here I want you to take away the lesson. इससे मुझे सबसे बड़ा टेक अवे तो यही लगा कि मुझे ये समझ आ गया कि इट्स क्रूशियल टू रिस्पेक्ट योर ओन बाउंड्रीज। जब आप खुद की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, जब आप आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए कुछ करना चाहोगे, एट द एंड लॉस आपका ही होना है, आपको ही परेशान करेगा सामने वाला के। तो इट्स बेटर कि आप अपने बाउंड्रीज पे फर्म रहो, मेक श्योर कि ओवर डिलीवर करो, बट नेवर बाय गोइंग आउट ऑफ एंड डूइंग समथिंग जो कि आपके पर्सनल बाउंड्रीज को ब्रेक कर रहा हो। नेवर डू समथिंग लाइक दैट। सो द टेक अवेज आई वांट यू टू टेक अवे ऑफ कोर्स इज द फर्स्ट वन कि बाउंड्रीज अपने बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो, नो मैटर विच फील्ड यू आर वर्किंग ऑन। Never ever compromise or break your boundaries for anyone, for no matter how much the client is paying you. They do not own you, they have just collaborated with you for the service. You are working with them and not for them, right? The second one, I always set clear expectations. Yes, I did that in the past as well, but now things are more clearer, more firm. Thanks to my toxic client, he taught me a lot. The third one, your energy is your most valuable asset. So before investing or before choosing to onboard a toxic client, make sure you know कि you have so much of energy which you want to invest in this toxic client, जो कि आपके future prospects और future goals and growth को भी बहुत गंदे तरीके से impact करेगा. Make sure you get ready for all of this when you're onboarding someone. And the fourth and most important one, some clients are just not meant for you and that's okay. It's not a failure on your end. You will get to understand. आपको first 2 meetings में ही एक अंदर से vibe आ जाएगी. अगर आपको एक बार भी second thought आता है ना कि maybe this person will not be the right fit, you should ditch it. In that moment, no matter what happens, even if you have taken the payment, make sure you refund it, but never do that. That guy told me to refund his money back कि नहीं नहीं मुझे तो refund चाहिए ऐसा वैसा, and when I did not give him, तब उसने negative reviews डाले. But I understood कि अगर मैं उसको refund दे देती ना, तो वहाँ पर ये समझ आता कि I was wrong, which I was not. ठीक है, तो I have firstly delivered what I had promised. I was very clear on grounds. I had done whatever it takes and everything which was planned based on the agreement. Everything was delivered, but still that guy went ahead and did things to me which was so wrong. और eventually जीत मेरी हुई है, right? अभी तक मेरे पास proof है, मैं screenshot लगा दूंगी यहाँ पे कि उसने तो सॉरी बोला, उसे तो समझ आया कि नहीं इसके साथ तो भिड़ने में कोई फायदा नहीं है, and that was it. So this is how we end this story and I hope you got takeaways from this one of mine and tell me which story you want to hear next. Till then, see ya.